صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساخت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من انصاره وعوانه ولا تجعلنا من اعدائه. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام: السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. آج اس عشرے کی یہ آخری مجلس ہے. ظاہر ہے شب عاشور ہے، کل ظاہر فضائل کو تو بیان نہیں کیا جائے گا، اور ہمیشہ کی طرح کہ جب بھی کسی موضوع کو شروع کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع کو ان 9 مجالس میں کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہی کہ جیسے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ کے سامنے بیان کرنا کہ یہ بھی موضوع ہے اور اس چیز پر بھی بات ہو سکتی ہے، اور اس لیے کہ انشاءاللہ کہ آپ لوگ خود جائیں آگے اس پر تحقیقات کریں، پڑھیں، ایک موضوع آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے. بہرحال زیارت وارثہ پر گفتگو رہی. انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مجالس مقبول پروردگار قرار پائے اور انشاءاللہ ہماری ہدایت کا سبب قرار پائیں، اخروی نجات کا سبب قرار پائیں. کل جو بحث ہم کر رہے تھے آپ سب جانتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو تھی. ایک دو چیزیں تشنا رہ گئی تھی، ان کو چاہتی ہوں کہ آج بیان کروں، کیونکہ جو زیارت کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک چیز کیا ہے کہ آخر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو جب اپنے فالوورز کو لے کر نکل رہے تھے تو اس وقت فرعون نے کیا کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو لے کر جا رہے تھے، اور سامنے دریا ہے، سامنے سمندر ہے، اور پیچھے فرعون کی فوج بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اس وقت کہ جب آگے کوئی رستہ نہیں رہتا، ظاہری طور پر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ آگے سمندر ہے، ظاہر ہے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، نجات کی کوئی تدبیر نہیں ہے، اب ہم یہاں سے کیسے بچیں گے؟ اگر آگے جاتے ہیں تو آگے سمندر ہے، اور اگر پیچھے ہے تو پیچھے ایک اور دشمن فرعون اور اس کے لشکر کی صورت میں موجود ہے. تو اب کیا کریں؟ وہاں پر پروردگار عالم دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا کرتا ہے کہ اے موسیٰ کیا کرو، وہی عصا، اس کو تم نے کیا کرنا ہے، خشکی پر مارنا ہے، اور وہاں پر سمندر کے اندر کیا ہوگا کہ وہ رستہ نکل آئے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کبھی سمندر کے اندر اچانک سے رستہ بن جائے. لیکن پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ اگر خدا کے نمائندے کے پیچھے پیچھے چلو گے تو پروردگار ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا کرتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے. جب آخری فرد وہاں سے چلا گیا, اب فرعون نے بھی یہی سوچا کہ میں بھی اسی رستے پر چلتا ہوں, مجھے بھی نجات مل جائے گی. لیکن چونکہ اللہ کے نمائندے کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں تھا, اگرچہ اسی رستے پر بھی چلتا ہے, لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ جب درمیان سمندر کے آتے ہیں تو دونوں طرف سے وہ سمندر مل جاتا ہے, اور تمام کا تمام لشکر جو ہے وہ وہاں پر غرق ہو جاتا ہے. خود فرعون بھی وہاں پر غرق ہو جاتا ہے. بہرحال امام حسین علیہ السلام چونکہ وارث موسیٰ علیہ السلام ہیں, امام حسین علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ان افراد کو جو واقعاً امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے, امام کو اپنا لیڈر, امام کو اپنا رہبر, امام کو اپنا امام تصور کرتے تھے, امام علیہ السلام انہیں لے کر گئے. اور تاریخ کا یہ قصہ ہمیں یہی بتاتا ہے, یہ قرآنی قصے صرف اسی لیے نہیں ہے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں, بلکہ اس لیے پروردگار نے ان کو بیان کیا ہے کہ تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو. امام حسین علیہ السلام بھی اپنے تمام ان فالوورز کو, اپنے چاہنے والے کو لے کر نکلتے ہیں, اور قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر لیڈر سچا ہوتا ہے, اگر لیڈر واقعاً خدا کا نمائندہ ہوگا, صراط مستقیم کا راہی ہوگا, تو وہ نہ صرف یہ کہ خود نجات پاتا ہے بلکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی نجات سے ہمکنار کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں ایک اور آیت بھی قرآن کے اندر ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سارے مل کر میرے ساتھ کیا کرو, جاؤ اور جنگ کرو, اور جو ہمارا حق ہے ہم اس حق کو لے لیتے ہیں. اور پھر وہی ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے کہ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں. ان تمام فرعونیوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, انہوں نے کیا کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ, کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ان سے, ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وارث موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. امام حسین علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو نجات کے لیے یزید کی اس حکومت کے خلاف قیام کرنا ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلے. اس دن بھی عرض کیا کہ امام علیہ السلام مدینہ سے نکلے, پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. توجہ, پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. امام مکہ میں 4 ماہ تک رہے, مکہ پورا مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں, حاجی پوری دنیا سے آ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, وارث کعبہ حج کو چھوڑ کر وہاں سے اپنے احرام کو تبدیل کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں. لیکن کوئی بھی, کتنے افراد ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے ملے اور امام کے ساتھ مل کر کربلا گئے. ہاں, پھر اس کے بعد کربلا میں چلے گئے. دنیا جانتی ہے, توجہ, دنیا جانتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء اس وقت کربلا کے اندر ہے. امام علیہ السلام بار بار انہیں بلا رہے ہیں, جس شخص کو دیکھتے ہیں اسے بلاتے ہیں, فوج اشقیہ کے سامنے تقاریر کرتے ہیں, اور فوج اشقیہ کی جو اکثریت ہے وہ کون ہے, وہ بھی مسلمان ہیں. پھر اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ اتنا ظلم کربلا کے اندر ہو گیا. ہاں, جناب زینب سلام اللہ علیہا, امام سجاد علیہ السلام کوفہ میں پہنچتے ہیں. ہاں, کوفہ میں جب پہنچے, جناب زینب نے بازار کے اندر ہی وہ خطبہ دیا, اور جب خطبہ دیا تو تاریخ کہتی ہے, روایات کہتی ہے کہ تمام افراد نے رونا شروع کر دیا بی بی کی مظلومیت پر. لیکن آپ بتائیے کہ جب بی بی کا قافلہ دربار کی طرف چلا, کتنے افراد منقلب ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ چلو ایک گناہ ہم سے سرزد ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. اب امام حسین علیہ السلام کے دوسرے فرزند امام سجاد امام کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. خود علی کی بیٹی یہاں پر موجود ہے. کتنے افراد وہاں سے امام سجاد کے ساتھ ملے, کتنے افراد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے پر منقلب ہو کر انہوں نے جناب زینب کا ساتھ دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت پورے کا پورا کوفہ وہاں انقلاب لے آتا اور اس تخت کو کھینچ کر امام سجاد کو دے دیا جاتا. لیکن انہوں نے کس پر اکتفا کیا؟ صرف ظاہری طور پر رونے پر اکتفا کیا. رونا کبھی بھی نجات کی دلیل نہیں ہے, اور کوئی بھی اس کو غلط معنی میں بھی نہ لے. رونا کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے حق کو ادا کر دیا ہے. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. موسیٰ کی قوم نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا,
इन्नहा होना काइदून, जाओ तुम और तुम्हारा रब जाकर उनसे जंग करो, हम तो यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकलाब से, उस शहादत से कुछ असरात भी हुए। हाँ, बहुत सारे अफराद ने बाद में तौबा की है। करबला में कितने शहीद हुए? 72। इमाम को कितने नासिरों की जरूरत थी? अगर कुछ और अफराद मिल जाते तो शायद जंग का नक्शा ही बदल कर रह जाता। लेकिन उसके बाद रिवायात के कहती हैं 3 तरह के गिरोह दुनिया के सामने आए। पहला गिरोह कौन सा है? तव्वाबीन का है, जिन्होंने तौबा की कि ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये बहुत बाद में जाकर उन्होंने ग्रुप की सूरत में सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले पहला ग्रोह कौन सा है? तकरीबन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद 43,000 अफराद बताए जाते हैं जो सिर्फ बाद में तौबा के नतीजे में, पशेमानी के नतीजे में मारे गए। हम उन्हें मसलन तारीख ने उन्हें शहीद भी नहीं कहा। पहला ग्रोह कौन सा है? पहला ग्रोह तव्वाबीन का ग्रोह है, जिन्होंने तौबा की। हाँ, तव्वाबीन यानी तौबा करने वाले। बहुत सारे ऐसे अफराद थे जो शायद जाना चाहते थे करबला में, लेकिन नहीं जा सके, चूंकि बताया कि उन्हें इब्ने जियाद ने कैद भी कर दिया था। जैसे खुद मुख्तार कैद में थे, कर्फ्यू था, जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इन्होंने सुलेमान इब्ने सुरद खुजाई की क़ियादत में वहां पे क़याम किया और जंग का इरादा किया। तकरीबन 12,000 अफराद मारे गए। हाँ, वाक़या करबला के बाद 12,000 अफराद तव्वाबीन की सूरत में मारे गए। लेकिन आप बताइए कि क्या अब वो तमाम वाक़या करबला, वो तमाम शहादतें, वो सब कुछ वापस हो सकता है? नहीं, बहुत देर हो चुकी है। जरूरत थी कि ये 12,000 अफराद पहले इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मिलते। फिर उसके बाद कौन सा दूसरा ग्रोह मिलता है? ग्रोह मदीना का। हाँ, कि हम सब जानते हैं कि करबला के वाक़े के बाद सिर्फ यजीद का सिर्फ एक कारनामा ये नहीं है कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद किया, बल्कि 3 दिन तक मदीना पर उसके लश्कर ने लश्कर कशी की। और क्या कहा गया कि अहले मदीना का खून हलाल है, उनकी खवातीन की इज्जतें तुम्हारे ऊपर हलाल है। सोचिए कि अगर हुकूमत वक्त के सिपाहियों को ये कह दिया जाए कि आज ये 3 दिन तुमने क्या करना है, जिसको मर्जी चाहे कत्ल कर दो, जिस खातून की चाहो इज्जत को लूट लो, तुम्हें खुली इजाजत है। इसे वाक़या हर्रा कहा जाता है, तारीख के अंदर मौजूद है। यजीद के लश्कर ने 3 दिन तक मदीना शहर के ऊपर चढ़ाई की, अहले मदीना को कत्ल किया गया, जिनमें सहाबी मौजूद हैं, सहाबियों की औलादें मौजूद हैं, ताबईन मौजूद हैं, उनकी औलादें मौजूद हैं। 3 दिन तक मुसलमान खवातीन की नामूस को लूटना जायज करार दिया गया। और यहां पर रिवायत के कहती है कि तकरीबन 12-15 हजार अफराद इस मार्के में वो क्या हुए, मारे गए। अगर सोचिए कि ये तमाम अहले मदीना उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देते तो क्या ये सब कुछ होता? लेकिन वही तारीख ने क्या लिखा कि बहुत देर हो चुकी थी। और सबसे आखिर में क्या है? मुख्तार का क़याम है। हम सब जानते हैं, आप लोग फिल्म देख चुके हैं कि जनाब मुख्तार ने यजीद के खिलाफ क़याम किया, और इस क़याम के नतीजे में अगरचे जितने भी कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उन्हें कत्ल किया गया, लेकिन जाहिर है इधर से मुसलमान भी तो मारे गए। कितने मुसलमान मारे गए? कितने मुसलमान? 22,000 मुसलमान मारे गए। सोचिए कि ये जो मुसलमान अब मर रहे हैं, उस वक्त भी तो मौत से डर कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नहीं दे रहे थे ना, लेकिन अब जो मर रहे हैं इन्हें तारीख ने क्या कहा है? इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया। बस हदीस क्या है, क्या होना चाहिए? हम भी एक इमाम के गैबत के जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं ना। अगर कल इंशाअल्लाह, कल क्यों, आज ही इसी लम्हे अगर इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए तो हम सब ने अपने अपने गिरेबानों में झांकना है कि कौन कौन इमाम का साथ देने वाला है, कौन पीछे हटने वाला है, कौन ये कहने वाला है कि नहीं मौला मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं वहां
सऊदीया में नहीं आ सकता, मैं आपके साथ जंग नहीं कर सकता, मैं इराक नहीं जा सकता, मेरी ये मजबूरी है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उस वक्त भी तो इसी तरह की एक्सक्यूजेस दी गई थी ना। हाँ, होना क्या चाहिए? अल मुतकद्दिमु बिहिम मारिक, तवज्जो, जो कोई भी वक्त के इमाम से आगे चला जाता है, यानी बजाय इसके कि उन्हें इमाम माना जाए, कई ऐसे वाकयात मिलते हैं ना कि लोग क्या करते थे, इमामत को मशवरे देते हुए नजर आते हैं। इमाम को ये कहते हुए नजर आते हैं कि या इमाम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे उलमा को भी मशवरे अब दिए जाते हैं, बजाय इसके कि उलमा से, आइम्मा से रहनुमाई ली जाए, उन्हें मशवरे दिए जाते हैं कि आपका अमल ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए। अल मुतकद्दिमु बिहिम मारिक, जो कोई भी अपने आप को इमाम से आगे तसव्वुर करता है, वो ये ना समझे कि वो मुसलमान है, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, वो क्या है, वो मारिक है, वो खारिजे दीन है। जो भी उनसे आगे चला जाता है वो दीन से खारिज हो जाता है। वल मुतअखिर अनहुम जाहिक, जो इनसे पीछे रह जाता है, यानी पीछे भी रहने वाला क्या मतलब है, यानी उनके नक्शे कदम पर चलने वाला नहीं है, पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। तो पीछे रहने वाला तो हमेशा ही नाकाम हुआ करता है। हाँ, वही तो हमेशा फेल होता है। हाँ, वही हलाक होने वाला है। बस होना क्या चाहिए, वल्लाजिम लहुम लाहिक, कि लाजिम क्या है, वाजिब क्या है, कि इमामत के हुक्म पर सर तस्लीम खम कर दिया जाए। ज़ियारत आले यासीन आप सब पढ़ते हैं, ज़ियारत आले यासीन का जुमला क्या है कि जो इमाम हुक्म दे दे वही वाजिब है, और जिस काम से मना कर दे वही हराम है। सलवात पढ़ने मामा। उसके बाद जिस हस्ती पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा है, क्या कहा है कि अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, ए ईसा रूहिल्लाह के वारिस आप पर हमारा सलाम हो। यानी अंबिया की, यानी पैगंबर आखिर से पहले जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं वो कौन है, ईसा रूहिल्लाह। हजरत ईसा कौन से नबी हैं, कौन से नबी हैं, पैगंबर आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिस नबी का दौर है, जिस नबी का दौर है वो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम है। यानी पैगंबर खातिम से पहले लोग जिसकी किताब को फॉलो कर रहे हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, साहिबे शरीयत नबी। और कैसा नबी, हाँ, कि खुद भी मासूम है, उनकी माँ भी मासूमा है। वैसे तो परवरदिगार ने कहा कि कुछ जो है ऐसी कॉमन खुसूसियात हैं जो तमाम अंबिया के पास है, जैसे मसलन इल्म अंबिया के पास है। हाँ, नबी होता ही वो है कि जिसका इल्म वैसा हो कि जमाने में उस जैसा इल्म किसी के पास ना हो, उसके पास वैसा तकवा हो जैसा तकवा किसी के पास ना हो, वो उसके पास इस्मत होती है, वो गुनाह नहीं कर सकता। बहरहाल इस्मत की बहस में कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि लोगों के जहनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। मासूम होना जरूरी है। फिर है कि इबादत, उसकी इबादत ऐसी हो कि जैसी कोई और इबादत कर ही ना सकता हो, उसकी परहेजगारी, उसका खौफ खुदा, उसका खशियत खुदा, खुदा से डरना वैसा उस जमाने में कोई भी कर ना सकता हो। लेकिन तमाम अंबिया के पास कुछ खुसूसियात ऐसी हैं, हर नबी को कुछ ना कुछ ऐसा मिला जो शायद किसी दूसरे नबी को ना मिला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी कुछ जो है वो खुसूसी सिफात हैं। वो क्या है कि एक तो पहली सिफत क्या है कि जब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है, आप कुरान को देखिए कि जहां पर भी हजरत ईसा का नाम आया तो साथ में उनकी माँ का नाम भी आया, ईसा इब्न मरियम। ईसा कौन है, मरियम के फर्जंद है।
किसी नबी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आदम का जब नाम आया तो आदम कहा गया, नूह का नाम आया तो सिर्फ नूह कहा गया, इब्राहिम का नाम आया तो सिर्फ इब्राहिम कहा गया, इस्माइल का नाम आया तो उन्हें भी सिर्फ इस्माइल कहा गया। लेकिन जब भी हजरत ईसा का नाम आता है तो क्या कहा जाता है? मसीह इब्न मरियम, ईसा इब्ने मरियम। हाँ, जब भी नाम आया माँ के साथ नाम आया। क्यों नाम आया? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने उन्हें बगैर बाप के पैदा किया। सिर्फ माँ है जिनके जरिए से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। और हम सब जानते हैं कि जनाब मरियम की जो वालिदा थी, सबको ये कुरानी किस्सा पता है, सिर्फ बच्चों को बताने के लिए और उस अपनी मजलिस से उसको रिलेट करने के लिए, कि हजरत मरियम की जो वालिदा हैं उन्होंने मन्नत मानी थी, क्योंकि वो बैतुल मुकद्दस के करीब रहते थे, कि ए परवरदिगार, वो प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने दुआ मांगी कि ए परवरदिगार, और कुरान ने बाकायदा तौर पर मन्नत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर मन्नत मांगना गुनाह होता या बिद्दत होती या शिरक होता या जो भी कोई और आप उसे नाम दे ले, तो खुदा कभी भी मरियम की वालिदा की उस मन्नत को कुरान में जिक्र न करता। खुदा बुराई के तौर पर जिक्र नहीं कर रहा। जब मरियम का पूरा वाकया बयान कर रहा है तो शुरू ही यहां से होता है कि मरियम की वालिदा ने क्या किया? मन्नत मानी कि जो मेरे शिकम में बच्चा है, मैं उसे, जब वो पैदा होगा, मैं उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। लेकिन जब पैदा हुआ तो वो कौन थी? वो बेटी थी। लेकिन जाहिर है मन्नत मानी हुई थी। आप लोग भी जब मन्नतें उठाते हैं, जिस तरह मन्नत मानी हुई है, अगर वो पूरी हो जाती है तो उसको उसी तरह अदा करना वाजिब है, वाजिब है। बहरहाल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थी, वो आगे एक लड़की थी, अब उन्हें किस तरह भेजा जाए? लेकिन वहां पर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनकी किफालत करते हैं और ये जिम्मेदारी लेते हैं कि ठीक है, मरियम की किफालत मैं करूंगा, उनका ख्याल मैं रखूंगा, आप इन्हें बैतुल मुकद्दस में वहां पर भेज दीजिए। मरियम की ऐसी इबादत है, उनका ऐसा किरदार है कि रिवायत क्या कहती है कि खुद जकरिया उस वक्त बे औलाद थे। मरियम का ऐसा किरदार है, इतनी पाकीज़गी है, ऐसी इबादत है, इतनी नेक और शाइस्ता खातून है कि जनाब जकरिया के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि परवरदिगार तू मुझे भी औलाद अता कर। इसी वजह से हजरत जकरिया ने यकुम मुहर्रम को रोजा रखा और परवरदिगार ने उन्हें हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जैसा नबी और फर्जंद अता किया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हम सब जानते हैं, आपको भी ये वाकया पता है कि मरियम उस एक हुजरे में रहती हैं और जकरिया, वही जो कुरान की आयत है वो बयान करती हैं कि जकरिया जब भी मेहराब इबादत मरियम में आते थे तो किस्म किस्म के फलों को देखते थे। और जकरिया बहुत हैरान होते थे कि मैं बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता, अंदर से कोई बाहर जा नहीं सकता, ताला मैं खुद खोलता हूँ, लेकिन मैं किस्म किस्म के फलों को देखता हूँ। और फल भी कैसे हैं? बेमौसम के फल हैं। यानी अगर अनार का मौसम नहीं है तो अनार पड़े हुए हैं, हाँ, वो सेब का मौसम नहीं है तो सेब पड़े हुए हैं। किस वजह से बेमौसम के फल आते थे? कि ताकि कोई ये ना कहे कि कोई बशर है, कोई इंसान है जो ये फल रख कर जाता है। बहरहाल हजरत जकरिया जब पूछते हैं कि अन्ना लके हाजा, ए मरियम बताओ कि ये फल कहाँ से आते हैं, तो उस वक्त मरियम बताती हैं कि ये अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से जन्नत से परवरदिगार मेरे लिए मेवे भेजता है। क्या कहना वारिस ईसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि उन्हें कैसी माँ मिली? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी खुद मासूम है, माँ भी मासूमा है। हाँ, अगर मरियम सिद्दीका है तो ये सिद्दीकाए कुबरा है, राजिया है, मरजिया है, बतूले अजरा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरियम के पास खाने जन्नत आता है। और क्या कहना इस मासूमा का कि कई मर्तबा ऐसा हुआ कि खाने जन्नत आया और कई मर्तबा ऐसा हुआ कि रिजवान जन्नत लिबास से जन्नत लेकर आता है। और इस मासूमा का क्या कहना कि ये जब रोटियां पकाती हैं, जिब्रील उन रोटियों को लेकर जाते हैं, सूरह दहर को लेकर आते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अब एक और वजह भी बताई गई, वो क्या है कि ईसा के साथ उनकी माँ का जिक्र इसलिए आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब अभी 3 दिन के ही थे तो उन्होंने क्या किया था, अपनी माँ की तहारत की गवाही दी थी। जाहिर है बगैर बाप के पैदा हो रहे हैं, और मरियम भी परेशान है कि अब मैं जाऊंगी अपने कौम और कबीले में तो कैसे मैं लेकर जाऊं, कि वो तो मेरे ऊपर तोहमत लगाएंगे कि ये बच्चा तुम कहां से लेकर आई हो। परवरदिगार का हुक्म होता है कि ए मरियम तुमने क्या करना है, तुमने बस खामोश रहना है और उन लोगों से ये कहना है कि मैंने चुप का रोजा रखा हुआ है। उस वक्त के मुआशरे के अंदर चुप का रोजा होता था, जिस तरह आजकल हम लोग सिर्फ खाने पीने से परहेज करते हैं, उस वक्त क्या था कि चुप का रोजा रखा जाता था। कुरान के अल्फाज है कि मरियम तुमने ये कहना है कि मैंने चुप का रोजा रखा हुआ है, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। बच्चे को लपेटा उठाकर जब दोबारा बैतुल मुकद्दस की तरफ आई तवज्जो, तो वहां पर तमाम लोगों ने जब देखा कि एक जाहिर है नौजवान लड़की और ये बच्चा लेकर कहां से आ गई है, उन्होंने कहा कि ए मरियम ना तो तेरा बाप ऐसा था ना तो तेरी माँ ऐसी थी कि ये तू बगैर शोहर के बच्चा कहां से लेकर आ गई। चूंकि खुदा का हुक्म था कि ए मरियम तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, सिर्फ खामोश रहना है। हाँ, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गवाही दी। 3 दिन का ईसा वहां पर गोया होता है, बोलना शुरू करता है, और उन्होंने वहां पर क्या कहा, क्या कहा, काला इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब वजअलनी मुबारका। जवाब क्या दे रहे हैं, मैं अब्द खुदा हूं, परवरदिगार ने मुझे किताब देकर भेजा है, मुझे मुबारक बनाया है। ऐ नमा कुंत, मैं जहां पर भी हूं मैं, मुझे परवरदिगार ने साहिबे बरकत करार दिया है। वो औसानी बिस्सलात व ज़कात, और मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज का और ज़कात अदा करने का। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। उस दिन पर सलाम है कि जिस दिन मुझे पैदा किया गया, उस दिन पर सलाम है कि जिस दिन मुझे मौत आएगी, और उस दिन पर सलाम है कि जिस दिन मुझे जिंदा उठाया जाएगा, जिंदा उठाया जाएगा। वो तोहमत क्या लगा रहे थे, तोहमत क्या लगा रहे थे कि ए मरियम ये बच्चा लेकर कहां से आई हो। ईसा इस्मत की गवाही दे रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे, मैं अब्द खुदा हूँ, मुझे मुबारक बनाया, मुझे सलात का हुक्म दिया गया है, मुझे ज़कात का हुक्म दिया गया है। उस दिन पर सलाम हो कि जिस दिन मुझे पैदा किया गया, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मुझे उठाया जाएगा। क्या ये सवाल का जवाब है? हाँ, ये सवाल का जवाब है। और वो लोग भी आगे से खामोश हो गए क्योंकि वो जानते थे कि वो इंसान जो 3 दिन का गुफ्तगू कर सकता है और ये कह रहा है कि मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं मुबारक हूँ, मुझे किताब दी गई है, जरूर उसकी माँ भी पाकीज़ा ही होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे ही सलवात पढ़ेंगे। ईसा तो 3 दिन के बोले थे ना, लेकिन जो वारिस ईसा अलैहिस्सलाम है वो कौन है, वो शिक्म मादर में भी माँ से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। हाँ, अभी अगर उस रिवायत को बयान करूंगी तो अभी से ही मसाइब शुरू हो जाएंगे। हाँ, वारिस ईसा, चूंकि ईसा ने 3 दिन की अपनी माँ की गवाही दी है, और जो वारिस ईसा अलैहिस्सलाम है उन्होंने क्या किया, जब बाजार में बहनों का काफिला आ गया तो वारिस ईसा ने बताया कि ईसा तो 3 दिन का गुफ्तगू करता है, हम तो वो अफराद हैं कि कटे हुए सर हों, नो के नेजा पर बुलंद हो तो हम तब भी कलाम करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल आज की जो शब है वो शब आशूर है, और आज जो है इंशाअल्लाह जब कभी आगे मौका मिला तो जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाकी मुअजिज़ात और उनकी जो बाकी खुसूसियात है, चूँकि वक्त यहाँ पे बहुत शॉर्ट होता है इस वजह से उन तमाम चीज़ों को बयान नहीं कर सकते। बहरहाल आज 9 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम मखसूस है हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद शहजादा अली अकबर से। करबला की ऐसी कुर्बानी, करबला की ऐसी कुर्बानी जिसने हुसैन जैसे साबिर को भी रुला कर रख दिया। रिवायात क्या कहती हैं कि मुल्ला अब्बास से ज़ंदरानी एक बहुत बेहतरीन आलिम दीन, वो पैदल करबला की तरफ सफ़र किया करते थे, पैदल करबला की तरफ सफ़र करते थे, एक कारवान को लेकर जाते थे।
मुल्ला अब्बास से जिंदरानी बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा काफिला लेकर गया, अभी करबला पहुंचे नहीं हैं करबला पहुंचे नहीं, थोड़ी दूर काफिले ने कयाम किया। अब जब कयाम किया, कहा कि काफिले वाले थके हुए थे, जाहिर है ऊंटों का घोड़ों का सफर है, थके हुए थे, लेकिन कहा कि मैं लेटा नहीं। मैंने थोड़ा आगे जाके देखा तो मुझे दूर से हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद नजर आए। कहा कि मैंने फौरन काफिले वालों से क्या कहा कि उठो उठो, वो देखो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत करीब है, शबे जुमा है, आज जाकर शबे जुमा हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत करते हैं। तमाम काफिला दोबारा उठा कूच किया और शबे जुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में पहुंच गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत की एक खुसूसियत है कि वैसे आप किसी भी इमाम की जियारत के लिए जाएं तो हुक्म है कि आप अपने होटल से, अपने सराय से, अपने रहने की जगह से गुस्ल करें, बेहतरीन लिबास पहने और उसके बाद इमाम की जियारत के लिए जाएं, सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। रिवायत क्या कहती है कि जिस हालत में तुम हो करबला पहुंचो, उसी तरह जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करो। मौला आपका जाहिर आ गया, मौला आपकी जियारत के लिए, आपके सलाम के लिए हाजिर है। मुल्ला अब्बास से जिंदरानी कहते हैं कि हम भी उसी तरह तमाम का तमाम काफिला इमाम अलैहिस्सलाम के मरकत के करीब पहुंच गया। शबे जुमा थी, नमाज को अदा किया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस शहीद का पुरसा दे। उनके पास भी एक बुक थी, उन्होंने क्या किया, उस मरसिये की किताब को खोला, वहां पर मरसिये अली अकबर निकला। मुल्ला अब्बास माजिंदरानी कहते हैं कि मैंने अली अकबर के मसाइब को पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ता रहा, बहुत गिरिया हुआ। मुल्ला अब्बास बयान करते हैं कि इतना गिरिया हुआ कि किसी को किसी की होश न रही। का उसके बाद जब थक कर दोबारा अपने उस सराय में गए तो वहां पर क्या हुआ, रात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कुछ वसीयतें की। इमाम ने कहा कि देखो ए माजिंदरानी, जब अपने मुल्क वापस जाना फलां शिया को मेरा सलाम कहना। और उसके बाद इमाम ने एक और आखिर में चीज कही, ए अब्बास से माजिंदरानी, जब भी शबे जुमा मेरी जियारत के लिए आओ तो कभी भी अली अकबर के मसाइब को न पढ़ना। कहा कि वो मौला क्या मुझसे गलती हो गई। कहा तुम्हें नहीं मालूम, जब भी शबे जुमा आती है मेरी माँ ज़हरा मेरी जियारत के लिए आती है। ए अब्बास से माजिंदरानी, तू नहीं जानता, जब से तूने अली अकबर के मसाइब को पढ़ा है मेरी माँ गश कर गई है। अजरुकुम इंदल्लाह, कैसा जवान है अली अकबर, 18 साल की जवानी, शबीह रसूल अली अकबर। मुख्तार ने कातिलों से पूछा था ना, बताओ कि करबला में हुसैन को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था। कातिल जवाब देते थे सबसे ज्यादा प्यारा अली अकबर था। कहा क्यों, इस बात का सबूत क्या है। कहा कि करबला की रेत का जर्रा जर्रा इस बात का गवाह है कि हुसैन को करबला में अगर कोई सबसे ज्यादा प्यारा था तो वो शबीह रसूल अली अकबर थी। जैसा अली अकबर को रुखसत किया वैसा किसी और को ना किया। अजरुकुम इंदल्लाह, अली अकबर बाबा के पास आए, ए बाबा मरने की इजाजत दीजिए। इधर इजाजत मांगी, उधर हुसैन ने इजाजत दे दी। उसके बाद जब अली अकबर घोड़े पर सवार होने लगे ना, इमाम कहते हैं ए अली अकबर, ये जाने का हक नहीं है, पहले जाओ अपनी माँ बहनों से विदा करके आओ। रिवायात क्या कहती है, ये करबला का वाहिद शहीद है। जब खैमों से रुखसत होने लगा, बीबियों ने दरमियान में अली अकबर को खड़ा किया, बीबियों ने उसके गिर्द हाला किया, अकबर का मातम किया। ए अली अकबर, ए शबीह रसूल अली अकबर, ये बताओ अभी किसके सहारे छोड़ कर जा रहे हो। अजरुकुम इंदल्लाह, वो हस्ती जिसने हुसैन को रुला दिया, जहां पर हुसैन का सब्र भी तमाम हो गया, उसको हम अली अकबर कहते हैं। अली अकबर को घोड़े पर सवार किया। जब अली अकबर आगे आगे चले ना, अरे गरीब करबला पीछे पीछे चल रहे हैं। अली अकबर कहते हैं बाबा मैं ऐसे मक्तल में जा नहीं सकता, ये अदब के खिलाफ है। बाबा आप घोड़े पर सवार हो जाइए, बाबा मैं चलता हूँ।
उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अली अकबर, काश कोई तेरा बेटा होता, 18 साल की जवानी होती, अरे फिर मैं तुझसे पूछता जवान को भेजना कैसा होता है। अजरकुम इंदल्लाह। अली अकबर मैदान में गए, हुसैन को चैन ना आया, एक बुलंद टीले पर खड़े हो गए, अपने फर्जंद की जंग को देख रहे हैं। जब अली अकबर अश्किया की फौज के दरमियान आ गए, थोड़ी देर अली अकबर हुसैन को नजर ना आए, हुसैन ने दस्ते दुआ को बुलंद किया, और याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, और याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, एक मर्तबा फिर मुझे मेरे अली अकबर से मिला दे। अली अकबर दोबारा आए बाबा के पास, लेकिन आकर सवाल क्या करते हैं, ए बाबा, प्यास ने बड़ा सताया है, बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए ना, ए बाबा मेरी प्यास बुझ जाए। हुसैन मजलूम ने क्या कहा, ए अली अकबर, अपनी जुबान को मेरे मुंह में रखो, शायद तुम्हारी प्यास बुझ जाए। जो ही अली अकबर ने अपनी जुबान को बाबा के मुंह में रखा, फौरन निकाल लिया। अरे बाबा, आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यास से मालूम होते। अपनी अंगुश्तरी को उतारा, ए अली अकबर, इसको अपने मुंह में रख लो, शायद तुम्हें प्यास कम मालूम हो। दोबारा अली अकबर मैदान में गए। अली अकबर की जंग का क्या कहना कि एक मर्तबा हसीन इब्न नुमैर घोड़े पर सवार होकर अली अकबर के सामने आया। उसने एक जंगी हरबे को आजमाया। क्या कहा कि ऐ नौजवान, तेरी जंग का क्या कहना, ऐ जवान, तू तो कैसी जंग लड़ रहा है। अली अकबर की आंखों में देखना शुरू कर दिया। अली अकबर ने जब उसकी आंखों में देखा, एक मर्तबा अचानक से कहता है, ऐ अली अकबर, जरा खैमों की तरफ तो देखो। जो ही अली अकबर ने खैमों की तरफ देखा, नेज़ा है जो सीने अली अकबर में लगा, घोड़े की पुश्त पर हुसैन की जवानी, हुसैन का जोरे कमर, हुसैन की आंखों का नूर। एक मर्तबा गुर्ज है जो सरे अली अकबर पर लगा, ताजा खून निकला, जुल्चना की आंखों में गया। रिवायत क्या कहती है, जुल्चना ने अपने रास्ते को फरामोश कर दिया। अरे बजाए इसके वो अली अकबर को लेकर खेमों में जाता, वो दोबारा फौज अश्किया में चला गया। अरे इतने हमले, इतने नेज़े, इतनी तलवारें, इतने तीर सीना अली अकबर में लगे कि अली अकबर की आवाज आई। हर कोई शहीद गिरता था ना, हुसैन को बुलाता था, वाहिद करबला का शहीद है। जब अली अकबर गिरने लगे ना, तो क्या कहते हैं, बाबा मकतल में नाना, ए बाबा मकतल में बड़े जालिम है, ए बाबा बड़े दुश्मन है, ए बाबा। सोचिए, अगर बाप अपने बेटे की आखिरी आवाज को सुने, हुसैन कितनी तेजी से जाएंगे। कई मर्तबा हुसैन गिरे, कई मर्तबा उठे। अरे मुझे मकतल का रास्ता नजर नहीं आ रहा। सुबह के अंदर से रास्ता बनाकर लाश अली अकबर तक पहुंचे। ओ मेरे जवान अली अकबर, ओ मेरे नूरे नजर अली अकबर, आओ मैं तुम्हें खैमों में लेके जाता हूँ। अली अकबर, थोड़ा जोर तुम लगाओ, थोड़ा मैं लगाता हूँ, लेकिन जवान का हाथ है जो सीने पर है। अली अकबर सीने से हाथ को क्यों नहीं उठाते? कहा बाबा सालिम ने नेज़ा मारा, लेकिन नेज़े का बल सीने में ही रहने दिया। कहा हमने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। अरे आज देखते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का फर्जंद चला जाए तो वो उसकी लाश को खुद उठाए। हुर के बेटे की लाश पर भी हुसैन जब पहुंचे थे ना, हुर को दूर किया था। हुर तू नहीं जानता, जवान का लाशा बाप नहीं उठाया करते। उलमा ने लिखा, अगर करबला को सिर्फ एक जुमले में बयान करो तो वो जुमला क्या है कि करबला वो जगह है जहाँ पर बूढ़ा
या मुनक़लिबिन यनक़लिबून या अल्लाह या महमूद बिहक़ मोहम्मद या अली बिहक़ अली या फातिर बिहक़ फातिमा या मुहसिन बिहक़ हसन या क़दीमुल एहसान बिहक़ हुसैन अलैहिस्सलाम। रोते जाएं और परवरदिगार से अपनी हाजात को तलब करते जाएं। आज शब आशूर है, सादात पर 2 रातें बड़ी मुश्किल गुजरी हैं, एक आज की रात और एक कल की रात। आज की जो रात है ना, तमाम असहाब खैमों में मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं, लेकिन जो कल की रात आएगी ना, वो बड़ी अजीब रात आएगी। ज़ैनब के हाथ में एक जला हुआ नेज़ा होगा। अल अमान वल हफीज़। आज की रात ही इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने मक्तल को बयान किया था। एक मर्तबा इमाम रात के किसी पहर में निकले, पीछे पीछे हिलाल इब्न नाफे भी गए। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए हिलाल, तुम मेरे पीछे आ रहे हो? कहा कि जी मौला। कहा कि मौला आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक एक जगह पर गए। इमाम अलैहिस्सलाम बयान करते जाते हैं, देखो हिलाल, इस जगह पर ना मेरे अली अकबर को नेज़ा लगेगा, यहाँ पर मेरा अली अकबर घोड़े से गिरेगा, यहाँ कासिम के टुकड़े होंगे, यहाँ मैं अब्बास का पहला बाजू उठाऊंगा, यहाँ दूसरा बाजू उठाऊंगा, और ये जो नशेम की जगह तुम्हें नजर आ रही है, ऐ हिलाल सुनो, यहाँ पर शिमरे लई मेरे सीने पर सवार होगा, 72 कदम से ज़ैनब देख रही होगी। परवरदिगारा हमारी मजालिस को शर्फ कबूलियत अता करना। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने दुआओं को लेकर बैठे हुए, परवरदिगारा सबकी दुआओं को